Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to deliver lecture on chapter 3, that is transmitters and receivers. Today's topic of discussion is generation of FM using indirect method. The course outcome for this course as maintain transmitters and receivers of AM and FM. AM, that is the amplitude modulation, and FM, that is the frequency modulation. How to maintain the transmitters and receivers required for amplitude modulation and the frequency modulation we will discuss here. The chart shows the CO and PO mapping. Here the CO3 is getting mapped with the PO1, PO2, PO3, 4, 8 and 10 at the highest level, while for the PO6 and PO9 it is getting mapped at the lowest level. The learning outcome for this course as explain with sketches principles of given type of FM generation technique by using circuit diagram required for the method which is used to generate the FM signal we will explain here. In the last lecture we were studied about types of FM generation technique, circuit diagram for reactance modulator and the varactor diode which are nothing but your direct method, and what are the limitations of FM generation technique and why we are using the indirect method we will discuss in the last lecture. So the FM generation, there are mainly two methods of FM generation, which are this generation of FM getting divided into two different parts, that is one is the direct method and the second one is the indirect method. Then this direct method getting divided into one, that is the reactance modulator and the varactor diode, while this indirect method getting divided into Armstrong method. In the last lecture we were discussed about the direct method, that is reactance modulator and the varactor diode, and what are the drawbacks for this method have come and how to overcome this method, how to overcome the drawbacks in the indirect method we will discuss in the coming slide. So the Armstrong method, which is nothing but your indirect method. Armstrong, it is the name of scientist who discovered how to generate the FM signal without any step, by stabling the with the stable oscillator and get the input by variation of the input signal, and we will get the FM signal. So this is the circuit diagram of or block diagram of Armstrong method. This block diagram of Armstrong method consists of the different blocks, out of which one is the crystal oscillator, buffer, 90-degree phase shifter, balance modulator, audio equalizer, combining network, first group of multiplier, mixer, crystal oscillator, second group of multiplier, class C power amplifier, and the transmitting antenna. This is nothing but the transmitter. These are the FM transmitter. So we will discuss in the AM transmitter, जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो ट्रांसमीटर का आउटपुट किसके पास जाता है, एंटीना के पास। और जब भी अपन रिसीवर पढ़ेंगे तो रिसीवर में क्या होता है, रिसीवर में आपके पास जो इनपुट आएगा दैट इनपुट कम्स फ्रॉम द एंटीना एंड यू विल गेट द एफएम आउटपुट। समझ में आया सभी को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्रिस्टल ऑसिलेटर। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोगों को अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना पे सिग्नल चाहिए तो आपको यहाँ पे अपन कौन सा एंटीना कौन सा ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं, एफएम ट्रांसमीटर। तो मुझे सिग्नल कौन से मिलेंगे, एफएम के ट्रांसमीटर। और एफएम के ट्रांसमीटर हो या फिर एएम के हो, मुझे अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए तो मुझे टू डिफरेंट सिग्नल्स रिक्वायर्ड है। वन इज द कैरियर सिग्नल एंड द सेकेंड वन इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये सब चीज़ क्लियर है आपको। देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम क्या है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम ये है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट करेगा फ्रीक्वेंसी को।
कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करेगा अप टू 1 मेगाहर्ट्ज, अप टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से जो सिग्नल जनरेट होगा दैट इज नथिंग बट योर कैरियर सिग्नल, दैट इज नथिंग बट योर कैरियर सिग्नल। और जैसे यहाँ से ये जो कैरियर सिग्नल आपको मिल रहा है, दैट कैरियर सिग्नल आर अप्लाइड टू द बफर एंड कंबाइनिंग नेटवर्क। किसको कनेक्ट होंगे? थ्रू द बफर। सबसे पहले 90 डिग्री फेज शिफ्टर को जाएंगे और जाने वाले हैं कंबाइनिंग नेटवर्क को। समझ में आया? ये जो कैरियर सिग्नल है वो किसको जा रहे हैं? 90 डिग्री फेज शिफ्टर एंड कंबाइनिंग नेटवर्क। इतना क्लियर है? सबसे पहले ध्यान में रखना है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर ने कौन से सिग्नल को जनरेट किया है? कैरियर सिग्नल को। कितने मेगाहर्ट्ज तक? 1 मेगाहर्ट्ज, जो कि सिग्नल जा रहे हैं किसको? कंबाइनिंग नेटवर्क एंड 90 डिग्री फेज शिफ्टर। समझ में आया? देन यहाँ से आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलने वाले हैं। यहाँ से अपने को क्या मिले? कैरियर सिग्नल। बफर का यूज अपने को पता है। बफर का क्या होता है? जो क्रिस्टल ऑसिलेटर पे लोडिंग इफेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है? लोडिंग इफेक्ट आ रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए अपन ने क्या लगाया? बफर। अगर मैं इसको नहीं लगाती थी और क्रिस्टल ऑसिलेटर को अगर डायरेक्टली मैं कंबाइनिंग नेटवर्क को कनेक्ट करती थी तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आते थे उसका इफेक्ट आपका मॉड्यूलेटर पे पड़ने वाला था। समझ में आया? इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट करूँगी? बफर। देन देखो यहाँ पे सबसे पहले अभी कैरियर सिग्नल अपने को मिले। कैरियर सिग्नल गए कंबाइनिंग नेटवर्क और 90 डिग्री फेज शिफ्टर के पास। इतना क्लियर है? देन मुझे आप पता है कि जब भी मैं मॉड्यूलेशन करने जाती हूँ तो मुझे कितने सिग्नल चाहिए? 2। कौन से? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल। यहाँ पे मुझे कैरियर सिग्नल तो मिले बट आई ऑल्सो वॉन्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे मैंने दिया है ऑडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट। यहाँ पे क्या दिखा है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट, जो कि मेरे ऑडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल जा रहे हैं कौन से? इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द ऑडियो इक्विलाइजर। किसके पास जा रहे हैं? ऑडियो इक्विलाइजर। अभी ऑडियो इक्विलाइजर के पास जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इक्वलाइज ऑडियो, जिसमें आपको 3 पैरामीटर्स मिलने वाले हैं, एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी विद दिस साइनोसाइडल वेव विच इज नथिंग बट योर साइन वेव और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जैसे ये इक्विलाइज मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिलेंगे दैट कम्स टू द बैलेंस मॉड्यूलेटर। अभी मॉड्यूलेटर के पास जाने के पहले आई ऑल्सो वॉन्ट कैरियर सिग्नल। कौन से सिग्नल चाहिए मुझे? कैरियर सिग्नल। तो ये जो कैरियर सिग्नल है ये थ्रू द 90 डिग्री फेज शिफ्टर आपको कहाँ पे जाने वाले? 90 डिग्री फेज शिफ्टर लगाने के पहले दीज आर द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। क्या है ये? अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल कहाँ कहाँ जाएंगे? 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग के पास आपका जो कैरियर सिग्नल है दैट सिग्नल हैविंग द 90 डिग्री फेज शिफ्ट एंड दे 90 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ दिस सिग्नल कम्स टू द बैलेंस मॉड्यूलेटर। कहाँ पे आए? बैलेंस मॉड्यूलेटर। मतलब सबसे पहले अपने पास कौन सा सिग्नल है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड द कैरियर सिग्नल। ऐसे दोनों सिग्नल मुझे कहाँ पे मिले? बैलेंस मॉड्यूलेटर के पास मिले। जैसे ही बैलेंस मॉड्यूलेटर के पास मुझे सिग्नल मिले, मेरे जो सिग्नल है उसके पास कितने साइड बैंड रहेंगे? 1 इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। कितने साइड बैंड रहेंगे? कैरियर फ्रीक्वेंसी रहेंगी। एक रहेगा लोअर साइड बैंड और एक रहेगा अपर साइड बैंड। समझ में आया? कैरियर फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड, ऐसे तीनों साइड बैंड के साथ वो कंबाइन नेटवर्क के पास चला जाएगा। समझ में आया? तो मुझे यहाँ पे क्या मिला? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मुझे क्या मिला? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्योंकि मेरे कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दोनों कंबाइन हुए थे और आई विल गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और यहाँ से मेरे पास आया था कौन सा? कैरियर सिग्नल। तो ये जो तीनों लो फ्रीक्वेंसी साइड बैंड और अपर साइड बैंड वाले सिग्नल कैरियर सिग्नल के साथ कंबाइन होने के बाद आई विल गेट द ऐसा एफएम वेव मुझे मिलेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी क्या है? एकदम लो
और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी लो है। समझ में आया? ऐसा सिग्नल जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी एकदम लो है और वो सिग्नल जाएगा फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर। कहाँ पे जाएगा? फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर। फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर के पास जाने के बाद आप लोगों को जो सिग्नल मिलेंगे वो सिग्नल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे और आपको यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, दैट इज द RF फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी यहाँ पे? RF फ्रीक्वेंसी विच इज कम्स टूवर्ड्स द मिक्सर। दिस फर्स्ट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लाई ऑल्सो वर्क एज अ एम्पलीफायर, जहाँ पे वीक सिग्नल को अपन ने थोड़ा सा बढ़ा के स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट किया है और दैट सिग्नल कम्स टूवर्ड्स द मिक्सर। एक चीज अपन ने बिफोर 2 लेक्चर्स पढ़ा था, दैट इज जब भी मैं मिक्सर यूज करती हूँ तो मिक्सर के पास या तो कोई भी एक ऑसिलेटर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया है। कौन सा ऑसिलेटर कनेक्ट किया है? क्रिस्टल ऑसिलेटर, जो कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा अप टू 12 मेगाहर्ट्ज। कहाँ तक के जनरेट करेगा? 12 मेगाहर्ट्ज। और ये मिक्सर क्या करेगा? यहाँ से आने वाली मीडियम और लो फ्रीक्वेंसी और यहाँ से आने वाले कैरियर सिग्नल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा एंड दैट सिग्नल गोज टूवर्ड्स द सेकेंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर। कहाँ पे जाएंगे? सेकेंड ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर। अभी यहाँ पे मुझे मिक्स होने के बाद कैरियर सिग्नल मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऐड हो गए, किसके साथ? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। तो मेरे जो सिग्नल है ऑटोमेटिकली थोड़े से मॉडिफाइड हो गए, थोड़े से बूस्ट हो गए, जिसके कारण आपका जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे थ्रू द एम्पलीफायर मैं अगेन उस वीक सिग्नल को क्या करूँगी? स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करूँगी और आई विल गेट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्या मिलेगा मुझे? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और जैसे ही मुझे हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिला, मैंने उसको भेजा किसके पास? क्लास सी पावर एम्पलीफायर के साथ, जो कि सिग्नल को प्रोवाइड करेगा कौन से? पावर सिग्नल। और जैसे ही पावर सिग्नल प्रोवाइड करेगा दैट सिग्नल गोज टूवर्ड्स द ट्रांसमिटिंग एंटीना। किसके पास जाएगा? ट्रांसमिटिंग एंटीना, जहाँ से सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीवर को भेजने वाला है। क्लियर एवरीवन? समझ में आए? तो दिस इज अ यूज ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। कैसे कैसे डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे फंक्शंस करते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शन ये ब्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ये अपन ने यहाँ पे देखा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, इनडायरेक्ट मेथड है क्या ये? नहीं, ये जो मेथड है ये स्टेप बाय स्टेप होके कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को ऐड करते हुए वो पावर एम्पलीफायर के पास जाने के बाद स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद दैट कम्स टूवर्ड द ट्रांसमिटेड। दैट्स व्हाई दिस इनडायरेक्ट मेथड इट इज अ मोस्ट बेनिफिशियल मेथड एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मेथड टू गेट द FM आउटपुट थ्रू द ट्रांसमीटर। क्लियर एवरीवन? तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? FM ट्रांसमीटर के कितने मेथड्स थे? 2 मेथड जनरेट करने के। वन था इनडायरेक्ट मेथड और द सेकेंड वन इज द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अपन ने पढ़ा था रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर और द वैरेक्टर डायल, और इनडायरेक्ट मेथड में अपन ने पढ़ा है आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप सभी को ये डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। सो दिस लेक्चर इज समराइजेस एज टाइप्स ऑफ FM जनरेशन टेक्निक। क्या पढ़ा अपन ने यहाँ पे? टाइप्स ऑफ FM जनरेशन टेक्निक। उसमें से अपन ने आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड, उसको अपन ने ब्लॉक डायग्राम के साथ पढ़ा है। उसके बाद में थैंक यू so much for listening this lecture. In the next lecture, we will study about block diagram of FM super heterodyne receiver. Thank you.